Hello friends, welcome to Goenka Porn with me Suraj Nandrekar. Joining us today on this show Just Casual is former Chief Minister of Delhi, Atishi Marlena. She is in Goa campaigning. She has already started campaigning for AAP for 2027. Though it is too early, she's hit the ground and she has been doing a lot of groundwork, and her ambition is to get the Aam Aadmi Party seats from 2 to I don't know what number she has in mind. Let's go and ask her. Let's go and ask her. Maybe 21. Welcome to the show. Thank you. Thank you so much. The very first question to you is, how is it going coming back to Goa after a long time and being the CM of Delhi? I think Goa is the most beautiful place in the country, if not the world. And I think it's always a pleasure to be in Goa. And I think the kind of natural beauty that Goa has, no other state in the country has. And for anyone who's from outside Goa, you think about Goa, beaches, the sea. But Goa is just so much more than that. Like, because of all our political activity, I travel all across Goa. Apart from the sea, Goa's mountains, rivers, jungles, temples, churches, I think Goa is absolutely stunning. So it's definitely always a pleasure to come back here. In Delhi, the BJP defeated you. So are you in Goa to take revenge? See, the thing is that it's not a question of my revenge. Yeah. It's a question about the people of Goa. Today, BJP has been in power in Goa for 13 years. 13 years is no small amount of time. एक 5-year term के बाद कोई कह सकता है कि हमें एक मौका और दो. गोवा के लोगों ने दूसरा मौका भी दे दिया, तीसरा मौका भी दे दिया. And at the end of it, गोवा के लोगों को क्या मिला है? What is the state of Goa today? Number one, the kind of violence, gang wars and gunda raj that we are seeing in Goa today. एक तरफ गोवा की idyllic beauty है, मतलब गोवा is paradise on earth. And दूसरी तरफ गोवा के लोगों के मन में इतना डर है. आप न्यूज़पेपर खोलिए, गैंग वॉर की खबर आती है. अभी रमा कानकोनकर पे जो ब्रूटल असॉल्ट हुआ है, वो पूरे गोवा ने देखा है, वो पूरे देश ने देखा है. आप दूसरी तरफ देखने जाइए करप्शन, ऊपर से लेके नीचे तक. बी इट द इशू ऑफ इलीगल लैंड कन्वर्जन, बी इट द इशू ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स. यहाँ एक आम आदमी जो हाउस बाइफरकेशन के बाद पानी का कनेक्शन लेने जाता है, उसको भी पैसे देने पड़ते हैं. कोई फल सब्जी की दुकान लगाना चाहता है, उसको ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं. आज गोवा में हर चीज का रेट है. आप अनएम्प्लॉयमेंट देखने जाइए. गोवा's unemployment figures are twice that of the rest of the country. और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट गोवा में 20% है. ये मैं नहीं कह रही हूं, ये बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा कह रहा है. तो बीजेपी ने 13 साल में गोवा के लोगों को क्या दिया है? गैंग वॉर्स, गुंडा राज, करप्शन, ब्रोकन रोड्स, बैड हॉस्पिटल्स एंड टोटल अनएम्प्लॉयमेंट. तो आज गोवा के लोग एक चेंज चाहते हैं. गोवा के लोग अपनी जिंदगी बेहतर देखना चाहते हैं और ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ये बीजेपी नहीं करने वाली है. When AAP has come here, 2017 you didn't get any seats. 2022, after a lot of work, you got 2 seats. But when you come back after the 2022, there is a tag on AAP that it's a vote splitter. How do you react to all these allegations? देखिए, हमारे पे तो एलिगेशन है हम वोट स्प्लिटर हैं. कुछ पार्टीज पे तो इस्टेब्लिश्ड है कि वो बीजेपी के वोट बैंक हैं. इज इट नॉट इस्टेब्लिश्ड? वोट बैंक नहीं, एमएलए बैंक. राइट. अगर आप पूरे देश में देखिए, अगर कोई एक पार्टी है जो बीजेपी की आंख में आंख डाल के लड़ रही है, वो आम आदमी पार्टी है. Why is it that all leaders of Aam Aadmi Party went to jail? Tell me any other political party that is fighting the BJP whose leaders have gone to jail. Not. When it comes to Gujarat, it is Aam Aadmi Party that is taking on the BJP. When it comes to Delhi, it is Aam Aadmi Party that is taking on the BJP. Now when it comes to Goa, it is Aam Aadmi Party that is taking on the BJP. Which party was at the forefront when this entire protest happened against Gunda Raj? It was Aam Aadmi Party. It was our MLA, Captain Venzi Vegas.
which is the party that has been taking up aggressively the issue of broken roads. हम गोवा के एक एक कोने में गए हैं जहां सड़कें टूटी हुई हैं. हमारे नेताओं ने वहां से खड़े होकर फेसबुक लाइव्स किए हैं, लोकल लोगों के साथ सिग्नेचर कैंपेन्स किए हैं. 1 lakh people in Goa signed letters to the Chief Minister of Goa saying that we want to repair our roads. The Chief Minister was forced into saying कि हम 15 दिन में कर देंगे. तो अगर कोई भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को टेक ऑन कर रहा है, गोवा के लोगों की इश्यूज उठा रहा है, वो सिर्फ एक पार्टी उठा रही है, आम आदमी पार्टी. So, do you think AAP can field candidates in all 40 constituencies? And it's saying that it's distancing itself from the alliance with Congress. देखिए, ये जो कांग्रेस की अलायंस का सवाल है, मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछूंगी. आप तो बहुत सालों से राजनीति देख रहे हैं, यू हैव बीन लुकिंग एट गोवा's पॉलिटिक्स. What guarantee can Congress give the people of Goa that जो MLAs उनकी सिंबल पे जीत के आएंगे, they will not jump from the Congress to the BJP? Please tell me. What happened in 2017? For whom was the mandate in 2017? In 2017, BJP got only 13 seats. Correct. Then what happened? Goa Forward. They supported BJP. 3 MLAs of Congress resigned. Vishwajit Rane, Dayanand Sobte, Subhash Shirodkar contested by elections, came back as BJP MLAs. And within another 2 years, 10 MLAs of Congress defected and jumped into the BJP. Fast forward to 2022. What happened in 2022? How many seats did Congress get? They got 11 MLAs. 11 MLAs. Why? Who voted for Congress? वो लोग जो बीजेपी को हराना चाहते थे, उन्होंने बहुत उम्मीद से कांग्रेस को वोट दिया कि हम बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहे हैं. आज आप बताइए कांग्रेस में कितने एमएलए बचे? 3 एमएलए बचे हैं. और वो भी ऐसा लोग मुझे कहते हैं कि जब सही रेट तय हो जाएगा तो 3 से 2 हो जाएंगे किसी भी दिन. राइट? But this is the gossip that one hears on the political market. Aam Aadmi Party is the only party in Goa whose MLAs have not defected or moved. We have 2 MLAs. Anti-defection law does not apply to them. If either of these MLAs wanted to defect, they're already past the 1/3 mark, right? लेकिन आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी है जिसके MLA कल भी हमारे साथ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे. आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के MLAs को ऑफर नहीं आए होंगे? आम आदमी पार्टी के MLAs को धमकियां नहीं मिली होंगी? ये तो रूटीन में बीजेपी करती है. इट्स दिस कैरेट एंड स्टिक. दैट एक तरफ उनको धमकी देती है, दूसरी तरफ ऑफर्स देती है. दे डू दिस ऑल ओवर द कंट्री. दिस फेमस ऑपरेशन लोटस, व्हाट एल्स इज इट? So, but Aam Aadmi Party's MLAs are still here. So, देखिए, the question is not whether we will contest 40 seats or whether we will not contest 40 seats. But Aam Aadmi Party is here to defeat the BJP. We will do everything that it takes to defeat the BJP. हम गोवा के हर घर में जाएंगे, हम गोवा के लोगों के साथ खड़े होंगे, हम गोवा के लोगों के मुद्दे उठाएंगे, चाहे करप्शन का इशू हो, चाहे गोवा के लोगों की जमीन की चोरी का इशू हो, चाहे गोवा के यूथ के बेरोजगारी का इशू हो. एंड इंटरेस्टिंगली गोवा में देखिए, मुझे तो लगता है गोवा में ना 2 पार्टीज भी नहीं है. गोवा में सिर्फ कुछ फैमिलीज हैं और ये कुछ फैमिलीज पूरी गोवा की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती हैं. जो पार्टी आती है उसकी सरकार में पहुंच जाती है. एंड वो फैमिलीज भी जनरेशन टू जनरेशन मूव करती है. राइट? करेक्ट. आप देखिए प्रताप सिंह राणे, 7 टाइम चीफ मिनिस्टर, फिर उनके बेटे विश्वजीत राणे. ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि सन इज अ सिटिंग मिनिस्टर एंड फादर इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन. गोवा में हुआ ही. फिर प्रताप सिंह राणे ने अपनी सीट अपनी बहू को दे दी. क्या गोवा में और कोई लोग नहीं है? सिर्फ यही 1-2 परिवार हैं. अब माइकल लोबो का परिवार देखिए. पहले माइकल लोबो एमएलए बनते हैं, फिर उनकी पत्नी डिलाइला लोबो एमएलए बनती हैं. इस बार सुनने में आ रहा है डैनियल लोबो इलेक्शन लड़ेंगे. अब बाबूश मोन्सेराट का परिवार देखिए.
पहले बाबुश एमएलए बनते हैं, मंत्री बनते हैं, उसके बाद उनकी पत्नी बनती हैं। इस बार ही कह रहे हैं कि रोहित को भी सेंटा क्रूज या सेंट आंद्रे से लड़वाएंगे। ये क्या है? इट डजंट मैटर विच पार्टी इज इन पावर, इट इज दीज सेम फैमिलीज। शिरोडा में आप सुभाष शिरोडकर को देख लीजिए, किसी के उनका एक बेटा सरपंच, उनकी पत्नी एक पंचायत में। ये क्या है? Now one is hearing, again, this is what I have been told, that Pramod Sawant's wife is going to contest from Mayam this time. Is it? गोवा के 20 लाख लोगों में क्या यही 14 परिवार हैं क्या? गोवा के आम लोग क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते? जो आपके यहाँ पे ऑफिस में लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं, ये आम लड़के लड़कियां क्यों चुनाव नहीं लड़ सकते? आप गोवा के लोगों का हाल देखिए। अभी कुछ दिन पहले मैं धारगल में थी एक प्रोग्राम में, वहां पे एक मुझे महिला मिली। वो मुझे बता रही थी कि उनके बेटे ने एमएससी किया हुआ है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है। फाइनली परिवार ने उस एमएससी किए हुए लड़के को टैक्सी खरीद के दी, लेकिन टैक्सी वो मोपा एयरपोर्ट लेके भी जाता है तो वहां पे कहती है कि इतना करप्शन है कि अगर आप लोगों को पैसा नहीं देते हो तो आपको बुकिंग नहीं मिलती है। नहीं, हमारे तो पढ़े लिखे बच्चे टैक्सी चलाएं और इनके बच्चे मेयर बने, एमएलए बने, मंत्री बने। बताइए ये कहाँ तक सही है? Talking about alliances now, is AAP going to distance itself only from Congress or other regional parties also? देखिए, AAP is going to defeat the BJP. Yeah. We will do whatever it takes to defeat the BJP. और अब मतलब आप लाइक माइंडेड पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार है? हम गोवा के 20 लाख लोगों से हाथ मिलाने को तैयार हैं बीजेपी को हराने के लिए। लेकिन वो लोग ऐसे होने चाहिए ना जो बीजेपी को हराने को तैयार हैं। जो पार्टीज हैं जिनका इतिहास ऐसा है, क्या वो जीत के आते हैं और वो बीजेपी के साथ जाके सरकार बना लेते हैं? वो जीत के आते हैं, उनके सारे एमएलए बीजेपी में चले जाते हैं। ऐसी पार्टीज पे कैसे भरोसा किया जाए? और मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ। लोग कहते हैं कि अरिथमेटिक ऐसा है कि अगर मल्टीपल कैंडिडेट्स होंगे तो बीजेपी जीत जाएगी, राइट? दिस इज व्हाट दोज हु आर इन फेवर ऑफ अलायंसेस गिव दिस आर्ग्यूमेंट। मैं आपको एक और अरिथमेटिक पूछती हूँ। मान लीजिए अलायंस होती है और अलायंस की 24 सीटें आती हैं। आम आदमी पार्टी की 10 सीटें आई, कांग्रेस की 14 सीटें आई। बताइए आपको क्या लगता है, अलायंस की सरकार बनेगी? नो, राइट? इस 14 में से 10 एमएलए, मैं गारंटी दे रही हूं आपको, इस 14 में से 10 एमएलए कूद के बीजेपी में चले जाएंगे, बीजेपी की सरकार बनेगी। ये अरिथमेटिक भी तो समझना जरूरी है। So basically you are trying to suggest that Aam Aadmi Party is going to go all alone. It seems like from your answer. कुल मिला के आम आदमी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। Okay. ये हमें बहुत क्लियर है। हम गोवा के लोगों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो धारगल में वो महिला क्यों रो रही थी? वो कहती हैं कि भाई हमारी जमीन चली गई मोपा एयरपोर्ट में, हमें कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिला। वहां पे इतने हजारों लोग काम करते हैं मोपा में, लेकिन हमारे परिवार के एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली। तो गोवा के लोगों के कोई अधिकार नहीं है क्या? मैं अभी ये निकाल रही थी, मैंने कुछ गोवा के पॉलिटिशियंस के पुराने इलेक्शन एफिडेविट्स निकाले। ये जो कुछ गोवा के बड़े बड़े परिवार है ना, जैसे एलेमाओ फैमिली, अभी एलेमाओ फैमिली भी हर पार्टी में रही है। चर्चिल एलेमाओ की 2007 और 2017 के एफिडेविट्स के बीच में उनकी नेटवर्थ 3 गुना बढ़ गई, उनकी भाई की 2 गुना बढ़ गई, उनके नेफ्यू यूरी एलेमाओ की 2012 और 2022 के बीच में नेटवर्थ 7 गुना बढ़ गई। आप मुझे बताइए, क्या गोवा के लोगों की पर कैपिटा इनकम इतनी बड़ी है? आप गोवा के एक आम परिवार से पूछिए, उनके लिए घर चलाना मुश्किल होता है। बाबू कावलेकर 2007 और 2022 के बीच में उनकी नेटवर्थ 12 गुना बढ़ गई। कैसे बढ़ी? आप बताइए। ऐसा क्या जादू है इन नेताओं के पास जो आम गोवा के लोगों के पास नहीं है? मैडम, आपके आंसर्स देख के मेरे को एक बात पूछने जैसे लगा कि व्हाई इज आप ओनली टारगेटिंग द ओपोजिशन एमएलएज एंड दिस? अब मैं आपको मेन वो बताती हूँ। बाबुश मोन्सेराट
2007 और 2022 के बीच में उनकी नेट वेल्थ 3 गुना बढ़ी। माइकल लोबो 2012 और 2022 के बीच में उनकी नेट वेल्थ 5 गुना बढ़ी। प्रमोद सावंत, उनकी 2007 और 2022 के बीच में उनकी नेट वेल्थ ऑलमोस्ट 20 गुना बढ़ गई। ये क्या मैजिक फॉर्मूला है that politicians in Goa have? मतलब मैं जानना चाहती हूँ, मैं एमएलए रही, मैं मंत्री रही, मैं मुख्यमंत्री भी रही, मैं अभी भी किराए के घर में रहती हूँ। जादू का चिराग रहेगा। हाँ, ये क्या No, my question remains. ये क्या जादू? देखिए ये जब आप इन दो चीजों को एक साथ रखिए, गोवा में करप्शन, एक आम परिवार की बेरोजगारी, सड़क के गड्ढों से मरते हुए लोग, गोवा में वायलेंस, गैंग वॉर, और दूसरी तरफ आप देखिए कि इन बड़े बड़े नेताओं के परिवारों के कोई मंत्री बन रहा है, कोई एमएलए बन रहा है, कोई मेयर बन रहा है, उनके बैंक के खाते में पैसे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये एक ही चीज दिखा रहा है। देखिए, इसमें से एक ही सिंपल कंक्लूजन निकलता है ना। मैं ये नहीं कह रही कि ये सारे नेता करप्ट हैं या इन्होंने करप्शन का पैसा खाया है, पर ये सवाल तो उठता है कि ये पैसा कहां से आ रहा है। गोवा के लोग गरीब हो रहे हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है, उनके 2 बच्चे हो जाते हैं तो उनके पास घर नहीं है, उनका घर बाइफरकेट हो जाता है तो उनको पानी का कनेक्शन नहीं मिलता, लेकिन इन लोगों के परिवार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि गोवा के रिसोर्सेज कहां जा रहे हैं। वो सब बड़े, ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े नेताओं के जो बढ़ते हुए खाते हैं उसी में जा रही हैं। I agree to what you said, but the Congress is making an allegation that AAP is coming here only to target Congress and the opposition MLAs. नहीं, एक्चुअली देखिए, अच्छी बात, अगर बहुत इंटरेस्टिंग बात है गोवा के बारे में, गोवा में कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है। गोवा में 14 परिवार हैं और वो दोनों पार्टीज में रहे हैं। आज अगर आप कैबिनेट देखिए प्रमोद सावंत जी का, मैं याद कर रही थी जब मनोहर पारिकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते थे, ही वाज अ वेरी फायरी लीडर ऑफ ऑपोजिशन। करेक्ट। दो स्कैम्स जो उन्होंने सबसे ज्यादा एक्सपोज किए थे। नंबर 1 माइनिंग स्कैम, उसमें कौन अक्यूज था? दिगंबर कामत। 36,000 करोड़ का माइनिंग स्कैम। उस माइनिंग स्कैम का क्या किया बीजेपी की सरकार ने? क्या इन्वेस्टिगेट किया? नहीं, क्लीन चिट दिया। आज दिगंबर कामत पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। सेकेंड स्कैम जो मनोहर पारिकर एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, पावर रिबेट स्कैम। हु वाज द कंसर्न्ड पावर मिनिस्टर? मोविन गुडिनो। आज मोविन गुडिनो बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं। क्या उनके स्कैम पे इन्वेस्टिगेशन हुआ? नहीं, अभी उन्हें रिसेंटली क्लीन चिट मिला। सो इट इज वेरी क्लियर, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कांग्रेस एंड द बीजेपी। इट इज जस्ट दीज 14 फैमिलीज, और ये 14 परिवार पूरी गोवा की पॉलिटिक्स को, पूरी गोवा की माइंस को, पूरे गोवा के जंगलों को, पूरे गोवा के लैंड को कंट्रोल कर रहे हैं। और आप इनके इलेक्शन एफिडेविट्स देखिए तो साफ नजर आ रहा है कि गोवा में चल क्या रहा है। The people of Goa are already actually disillusioned with the national parties. जैसे कि आपने कांग्रेस हुआ, बीजेपी हुआ. Now with AAP coming in, AAP has already been there from 2017. There is a thinking or a notion among the people that we want a regional party. How is AAP looking at this, and how you are approaching the people? Because what they feel, जो कुछ भी होता है, it goes to the high command. Any decision goes to the high command. There is no decision taken at the local level. आप मुझे बताइए, ये जिन परिवारों के मैं नाम ले रही हूँ, 14 परिवार के, तो हर पार्टी में रहे हैं। ये तो नेशनल पार्टी में भी रहे हैं, ये तो रीजनल पार्टी में भी रहे हैं, ये तो इंडिपेंडेंट भी रहे हैं, ये तो महाराष्ट्र की आई हुई पार्टियों में भी रहे हैं, राइट? आज अगर आप गोवा की पॉलिटिक्स देखिए तो आज लड़ाई बीजेपी कांग्रेस में नहीं है, आज लड़ाई बीजेपी आम आदमी पार्टी में नहीं है। आज जो असली लड़ाई है ना, इन 14 परिवारों में और गोवा के आम लोगों में लड़ाई है। आज आम आदमी पार्टी गोवा में क्यों आई है? क्योंकि अब समय आ गया है कि एक आम गोवन को, एक ऑर्डिनरी गोवन को, हमें उसको अधिकार चाहिए। क्यों भाई? एक सामान्य परिवार का बच्चा एमएलए क्यों नहीं बन सकता?
आप आम आदमी पार्टी के दोनों एमएलए देखिए. Does Captain Venzi Vegas come from a political family? No, he does not. वो कौन था वेंजी? वेंजी एक सिंपल से परिवार से मर्चेंट नेवी में काम करने वाला एक लड़का था. आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर था. आम आदमी पार्टी ने उसको टिकट दिया. क्या उसके पास पैसा था? Did he have money power? Did he have muscle power? No, he did not. Engineer Cruz Silva, does he come from a political family? No, he does not. वो घर के सिविल इंजीनियरिंग का काम करते थे. करेक्ट. आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दिया, उनको चुनाव लड़वाया. आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है और अब समय आ गया है कि गोवा के आम लोग गोवा को चलाएंगे. ये 14 परिवार गोवा को नहीं चलाएंगे. तो इस बार ये आम आदमी पार्टी गोवा के पॉलिटिकल सिस्टम को बदलने के लिए चुनाव लड़ रही है कि गोवा के रिसोर्सेज, गोवा की ज़मीन, इससे आने वाली वेल्थ ये गोवा के लोगों की होनी चाहिए. उनको अच्छी सड़कें मिलनी चाहिए, उनको घर बनाने की जगह मिलनी चाहिए, उनको पानी का कनेक्शन मिलना चाहिए, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनके घर के पास डॉक्टर मिलना चाहिए, अस्पताल में इलाज मिलना चाहिए. यही चाहते हैं ना लोग. आप मुझे ये बताइए कि मैं देखती हूँ कि गोवा में काफ़ी लोग, उनके बच्चे मर्चेंट नेवी में जॉब्स करते हैं. क्यों करते हैं? तो बहुत मुश्किल होता है इतने महीनों महीनों तक शिप में रहना, परिवार से दूर रहना. इतने परिवार हैं गोवा में जहाँ पे एक बुजुर्ग माता पिता सिर्फ घर पे हैं और बच्चे कोई विदेश में हैं, कोई मर्चेंट नेवी में नौकरी कर रहे हैं. वाई? बिकॉज दे हैव नो अदर चॉइस. एम्प्लॉयमेंट. लोगों के पास, पढ़े लिखे यूथ के पास आज गोवा में नौकरियां ही नहीं है. सो अब इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है गोवा में इस सिस्टम को चेंज करने के लिए. मैडम, इन लास्ट फ्यू डेज हमने देखा है कि देयर हैज बीन लॉट ऑफ लीडर्स हु आर लिविंग द पार्टी. व्हाट कुड बी द रीजन? देखिए, पार्टीज में ये सब कोई आता है कोई जाता है, ये तो चलता भी रहता है. पर ये फैक्ट है कि कुछ हमारी भी पार्टी में ऐसे लीडर्स थे जो कांग्रेस से अलायंस चाहते थे और आम आदमी पार्टी इस मैटर में बहुत क्लियर थी कि हम कांग्रेस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. बिकॉज अभी वो रिसेंटली कांग्रेस के एक एक्स MP का इंटरव्यू आया था, फ्रांसिस सार्दिन. उन्होंने कहा, उन्होंने तो इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि इस बार 2027 में भी जो कांग्रेस के MLA जीत के आएंगे वो कूद के बीजेपी में चले जाएंगे. अब देखिए, हम बीजेपी की सरकार बनवाने का हिस्सा नहीं हो सकते. तो ये तो क्लियर, अगर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे तो कुछ तो लोग आते जाते रहते हैं. लेकिन आप दूसरी ओर देखिए, आज कानकोण में एक बीजेपी के एक्स सरपंच ने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है. रिसेंटली नूवे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बेनाउलिम में बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है. पेडने, मांद्रे, इन जैसे एरियाज में आम लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं. आज सुबह सुबह सावरडे में एक प्रोग्राम में वहाँ की लोकल 15 महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है. क्यों कर रहे हैं? वो कांग्रेस क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे? वो बीजेपी क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे? बीजेपी की तो सरकार है, बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी के स्पीकर हैं, सब कुछ बीजेपी का है. तो अगर सावरडे की एक ST समाज की महिला आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रही है, वो क्यों कर रही है? वो इसीलिए कर रही है क्योंकि वो इस सिस्टम से परेशान है. वरना हम क्या देंगे? हमारा तो वहाँ पे MLA नहीं है, वहाँ के तो MLA वैसे भी स्पीकर हैं. सो द फैक्ट दैट an ordinary woman from the constituency of the BJP speaker joins Aam Aadmi Party is an indicator of the fact that people want change. Yeah. My last question to you is, now you are fighting the BJP on corruption plank. There is an allegation against Aam Aadmi Party also of 100 crore was used in Goa elections in 2022. And that is how the whole thing came up. मतलब जो दिल्ली का liquor scam हुआ, तो there were a lot of leaders of Aam Aadmi Party who went into jail, including Arvind Kejriwal ji. So how you are going to convince the people now here in Goa when you are talking about corruption of BJP? देखिए, आम आदमी पार्टी का करप्शन भी दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग करप्शन है और आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी भी दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग गिरफ्तारी है.
कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने करप्शन किया, लेकिन एक रुपया मिला नहीं किसी को। हमने इतने सालों में, एवर सिंस आई हैव बीन अ चाइल्ड, जब से टीवी आया, पहले दूरदर्शन होता था, फिर केबल होता था, आई स्टिल रिमेंबर टाइम्स ऑफ इंडिया शायद वाज वन ऑफ द ओनली न्यूज़पेपर्स एट दैट टाइम व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स। जब ये रेड्स होती थी ना इन एजेंसीज की, फ्रंट पेज पे फोटो आती थी, गड्डियों के ढेर लगे हुए होते थे, सोने के बिस्किट होते थे, उससे सीबीआई अपना सीबीआई नोटों की गड्डी से बनाती थी। किसी एक नेता के यहाँ रेड हुई, इन हर रेजिडेंस 500 pairs of shoes and gold and jewelry and all that was found. आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के घर में 1 रुपया मिला क्या? कोई कैश मिला? कोई शेल कंपनीज के कागज मिले? कोई बेनामी प्रॉपर्टी के कागज मिले? कुछ नहीं मिला। तो देखिए, जिस सरकार के हाथ में सारी एजेंसीज हैं, आपके पास एक ऐसा कानून है जिसमें कोई एविडेंस नहीं चाहिए और जिसमें आप बेल नहीं दोगे, तो जो आपसे लड़ाई करेगा उसको आप जेल में डाल दोगे। एंड दैट इज एग्जैक्टली दैट व्हाट हैपेंड टू आम आदमी पार्टी। गोवा में जो करप्शन है, इसके लिए गोवा के लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी फैमिली से पूछिए जिनके घर का बाइफरकेशन हुआ है, उनसे पूछिए उन्हें पानी का कनेक्शन कैसे मिला है। ऑलमोस्ट 100% केसेस में उनको पानी का कनेक्शन रिश्वत देके मिला है। आप किसी से पूछिए जिसका पैंजिम में छोटी सी फल सब्जी की दुकान लगाता है, वो, आप उससे पूछिए उसको ट्रेड लाइसेंस कैसे मिला है। उसको ट्रेड लाइसेंस पैसे देके मिला है। आज के दिन में गोवा में छोटे से छोटे काम से बड़ा काम बिना पैसे दिए हुए नहीं हो सकता। ये किसी सरकार में नहीं होगा कि एक फॉर्मर मिनिस्टर ये बयान देता है कि मुझे 15-20 लाख रुपए लेने पड़े अपना काम करवाने के लिए। एक सिटिंग मिनिस्टर ये बयान देता है कि सरकार में इतना करप्शन है। अब देखिए, जैसे ही गोविंद गावड़े ने बोला, तुरंत उनको कैबिनेट से बाहर कर दिया। बट एवरी पर्सन इन गोवा नोज इट। आप अपने ऑफिस से बाहर निकलिए, जो आपके ऑफिस में स्टाफ काम करता है, they should just ask the people walking on the road. How many of them have had to pay a bribe? कितना रेट देना पड़ा है? गोवा में हर चीज का रेट है। उनको कितना पैसा देना पड़ा है अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए? सड़क के शुरू से लेके एंड तक ऑलमोस्ट 100% पीपल आपको मिलेंगे जो किसी ना किसी अपने छोटे काम के लिए उनको पैसा खिलाना पड़ता है, कभी पंचायत में, कभी किसी सरकारी दफ्तर में, कभी किसी एमएलए के चेले चपाटे को। सो इट इज, I don't need to convince anyone of the corruption in Goa. People of Goa know the corruption from top to bottom. And this time, गोवा के लोग गोवा के इस परिवारवाद से भरे हुए सिस्टम को बदलेंगे। There is a lot to talk to you. It has been an interesting podcast. We got to know a lot of things from you. जिस तरह से आप लोग लड़ रहे हैं the system से, even the opposition, and there were a lot of questions from the people whether there will be an alliance or not. You made things clear. You actually told the people why the alliance is not happening, and or if alliance happens, what would happen to the MLAs. We wish you all the best, Atishi ji, for coming here and giving your time, precious time, valuable time, and I wish you all the best for that. Thank you. For your whatever you want to do in Goa. Thank you. Thank you very much. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।